जीवन ने ज्योत जगावो, दिव्य जीवन ने ज्योत जगावो, आप करता थे कार्य दीपाओ। Good evening to all. I am Palak Thakkar and this is my brother Ghanshyam Thakkar. Nelson Mandela once said, education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Indeed, when the world around us facing extraordinary difficult times of struggle and strife, of hunger and destruction, of nature calamities and terrorism, one can only bring us out from this darkness is education. While parents are the first teachers for the child, the school becomes the second step in the process. Somebody once said, school is a perfect grand rehearsal for a stellar performance of life. What a great day, what a great occasion, and what a great moment to talk about this. Yes, ladies and gentlemen, family and friends, we are proud to be here today on a centenary occasion of our school. It is truly an honor for us to host this celebrity event in front of the wonderful SDI's family. As we stand here, my mind becomes flooded with so many memories of my golden school days. I and Ghanshyam have spent our entire childhood in the premises of this school. Before a little kid joins a school, they dream about the school. They dream of the school is in the sky and teachers are seated on the cloud will teach them. They dream of sliding on the rainbow and climbing up and down the ropes of the rains. They dream about starting a new life, making new friends, and learn from the best of their teachers. And for us, truly, the dream comes true. Yes, Ghanshyam, we are so fortunate that we are always the part of this school. I still remember the day when Pujya Swamiji gave our father the vision of the school. I still remember the glow on his face when Pujya Swamiji entrusted him a massive responsibility of transforming his vision into reality. Yes, the school is a vision of Pujya Swamiji. His immense faith, constant guidance and blessings along with determination, tireless endeavor and hard work of our father transformed the school, which was just started with one building and 180 students, to its current form. As he set his mind to take the school to the next level, we really feel proud of him. He is constantly striving to make this school a future-ready school where our student is fully equipped to meet the challenges of 21st century. Anything that is built on a strong foundation of values is bound to grow big and strong. Our school is also built on the strong foundation of values as preached by our Swamiji. Values of honesty, belief, hard work, integrity, and above all humanity to its totality. On the strong foundation of these values, I found myself and my school growing side by side in the fields of academics, arts, science and sports. King Martin Luther once said, the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. And that can happen when the environment is full of positivity and encouragement. Ours is a spiritual campus, a pure environment, and with the blessing of Lord Swaminarayan, we have got some of the best teachers and staff who have worked hand in hand with our father in realizing their dreams. Do you know what I love about my teachers? Teachers takes the hand, opens the mind and touches the hearts. When we fall, they opens the mind with new possibilities and fill our heart with love and joy. They are always there for us whenever we need them. They guide us, discipline us and even listen to our weirdless thoughts. We draw so much inspiration from them. Now it's our turn to give it back. We have made up our mind that together we will take this dream forward. Let's take an opportunity to introduce our father, Mr. Shailesh Thakkar, the present trustee of the school. I request everyone to give a big round of applause. Jai Swaminarayan and a very good evening to all of you. Ghanshyam and Palak,
That was very nice. But you missed to thank our parents for their constant cooperation and support. Together, we form the valuable SDS family. So big round of applause for all of our parents. On this occasion, I would like to share my feelings about our student. Whatever we are doing, it's all for you. We want to give you the best environment, opportunity, resources so that you can become an Adarsh Vidyarthi and build a bright future, not only for yourself, but for whole country. Students, we are always there for you. We are happy to launch a new method of learning which shall be both enjoyable and rewarding. Let's invite Piyush Joshi to explain this method. Please come on stage, Piyush Joshi. Yeah, thank you so much for here. It's a great occasion. It's a great opportunity to share some views and some aspirations in front of you all. I'm associated with SDIS since 5 years, but last 2 years we are more associated, more involved in the school. 2 साल की जर्नी बहुत ही यादगार रही, बहुत ही सुपर्ब रही. बहुत कुछ हमने भी सीखा, बहुत कुछ स्कूल को करीब से देखा और जैसे जैसे स्कूल को समझते गए बहुत मज़ा आने लगा काम करने का. स्कूल क्या होता है, स्कूल के वैल्यूज़ क्या होते हैं, स्कूल का आधार जो फाउंडेशन हमने रखा, स्वामी जी ने रखा, वो किस आधार पे रखा, वो सारी बातें धीरे धीरे समझते गए और धीरे धीरे स्कूल के लिए जो रिस्पेक्ट हमारा था, जो प्यार था, वो निरंतर बढ़ता रहा. तो बहुत ही अच्छा लगता है स्कूल के साथ. काफ़ी पेरेंट्स को हम मिले हैं, काफ़ी को आज पहली बार मिले हैं. बच्चों से मिलते रहते हैं, लगातार टीचर्स को मिलते रहते हैं. Presentation is ready, madam? Yeah. So I think first we all should congratulate the school for completing the 10 years. Have a big round of applause. And we have not just finished 10 years, we have completed. तो पूर्णता की यात्रा जारी है. ना सिर्फ हमने ख़त्म किया है 10 सालों को, हमने पूर्णता की ओर अपना कदम उठाया है और धीरे धीरे जैसे बढ़ते गए हम समझते गए. जैसे यहाँ बच्चे सब गा रहे थे, आपने देखा कितने मज़े से गा रहे थे. आई रिमेंबर वन इंसिडेंट. एक बार अमेरिका में एक चर्च में ऐसा हुआ, एक बच्चा ABCD बोल रहा था, ABCD EFG और Z तक बोल रहा था. तो फादर ने कहा व्हाट यू आर डूइंग? तो बच्चे ने कहा आई एम प्रेइंग टू गॉड. तो फादर ने कहा ऐसे प्रेयर नहीं होती है. बच्चे ने कहा कि भगवान समझ लेगा, उसको जो शब्द चाहिए इसमें से ले लेगा. करेक्ट. सो इट इज़ नॉट द स्वीटनेस ऑफ द वॉइस, इट इज़ द प्योरिटी ऑफ हार्ट दैट कनेक्ट्स विद गॉड. या तो बहुत ही अच्छा लगा जब बच्चे गा रहे थे और कितना प्राइड से उन्होंने वंदे मातरम यहाँ पे गाया. ऐसा लगा कि भारत का भविष्य यहीं पे निर्माण होने वाला है. करेक्ट. तो वो झील, वो एंथू, वो जेस्ट उनमें था जो हमें बहुत मज़ा आया. सो इट्स अ न्यू. मैडम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़. ओके. कभी कभी ऐसा होता है, हम भी कभी कभी सोचना हैंग कर देते हैं अपना, तो वैसे वैसे कभी कभी टेक्निकली हैंग हो जाते हैं. या बट द थिंग इज स्कूल क्या होता है. तो स्वामी जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई और पिछले 6 महीने से लगातार मूर्ति स्वामी जी से, शैलेश भाई से, टीचर से, प्रिंसिपल से कांस्टेंट वी आर डिस्कसिंग, कांस्टेंट वी आर चर्निंग टू ईच अदर. और सोच रहे थे, क्योंकि जब स्वामी जी को मिले सत्य संकल्प दास स्वामी जी को, तब उन्होंने बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन किया हमको. और वो क्वेश्चन ये था कि 10 साल हो गए, अब व्हाट नेक्स्ट. और ये जो नेक्स्ट था ये बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि 10 साल के बाद आपको अपनी ऑर्बिट बदलनी है. 10 साल के बाद आप जहाँ पे है वहाँ से एक नई उड़ान भरनी है, क्योंकि 10 साल की मैच्योरिटी, 10 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल की एक्सपर्टीज़ और ये सारा एंथुजियाज़म लेके व्हाट नेक्स्ट यू वांट टू डू. तो स्कूल अभी क्या करना चाहती है उस पर बहुत सारा चिंतन मनन होता रहा. और उसके बाद हमने ये सोचा कि 10 इयर्स स्वामी जी के साथ डिस्कस करने के बाद, काफ़ी घंटों तक डिस्कशन किया. सत्य संकल्प दास स्वामी ने खुद हमारे साथ 2.5 घंटे बिताए टू अंडरस्टैंड द विजन, टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट लीप, द नेक्स्ट क्वांटम लीप ऑफ द स्कूल. तो ये 10 इयर्स अभी जो शिफ्ट हम ले रहे हैं, ये शिफ्ट बड़ा ही शानदार है और वो है इट्स लर्निंग टू लीडिंग. हम बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन अभी उनको लीड करना कैसे सिखाए, इस पे पूरा मंथन चालू था. स्वामी जी ने कहा कि द फ्यूचर बिलोंग्स टू लीडर्स, द फ्यूचर बिलोंग्स टू नेतृत्व.
तो हमारे बच्चों के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़, द फ्यूचर स्किल्स कैसे लाया जाए, और उन्होंने एक वर्ड कॉइन किया, एक वर्ड हम सबको दिया, और वो था मेक अवर स्कूल द फ्यूचर रेडी स्कूल। और ये फ्यूचर रेडी स्कूल आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, आज आप यहाँ पे जब एंटर हुए आपने देखा होगा विजिबिलिटीज़ को, वी हैव अंडरलाइन दी वर्ड फ्यूचर रेडी स्कूल। तो अब जब हमने स्वामी जी को पूछा, स्वामी जी इसका मतलब क्या है, व्हाट इज़ इन योर माइंड, प्लीज़ एक्सप्रेस अस, और उन्होंने बहुत ही अच्छी एक बात बताई। उन्होंने कहा वी कैन नॉट क्रिएट द फ्यूचर फॉर किड्स, हम बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, और जितने लोगों ने किया है दे आर डेस्परेटली फेल। तो हम बच्चों के लिए भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते, बट वी कैन डेफिनेटली क्रिएट किड्स फॉर द फ्यूचर। हम बच्चों को भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, और ये बच्चों को भविष्य के लिए तैयार करने वाला जो स्कूल है उसे हम कहते हैं फ्यूचर रेडी स्कूल। सो इट्स अ न्यू इनोवेटिव अप्रोच, फर्स्ट टाइम वी हैव लॉन्च्ड इन गांधीनगर की फ्यूचर रेडी स्कूल बने। तो फ्यूचर रेडी स्कूल में जब स्वामी जी ने क्वेश्चन किया व्हाट इज़ नेक्स्ट, सो वी हैव टू री इमेजिन द स्कूल, वी हैव टू recreate our own system, we have to rethink about what we are doing continuously, we have to restructure the entire processes, we have to relaunch some new concept, some old ones, some new one, we have to revision, not just revision, we have to revision our next processes for next 15-20 years, and finally we have to reinvent this school once again. So it's time for us, it's a rebirth. It's not just an event, it's a movement we are starting today in front of all of the parents. तो क्या है फ्यूचर शिफ्ट, फ्यूचर शिफ्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो स्वामी जी के साथ जो डिस्कस हुआ वो कुछ ऐसा डिस्कस हुआ, आप सब ने गौर किया होगा, आप सब ने महसूस किया होगा, आपने नोटिस भी किया होगा, पिछले 15 सालों में एक बहुत बड़ा शिफ्ट एजुकेशन में आया है, और वो सारे शिफ्ट इस वजह से है कि सिलेबस नेशनल लेवल पे स्टैंडर्डाइज हो रहे हैं। धीरे धीरे बोर्ड जो है वो सबलाइम हो रहा है, और एक ही बोर्ड जो है वो रूल करेगा फ्यूचर में, क्योंकि सिलेबस जो है वो स्टैंडर्डाइज हो रहा है अक्रॉस इंडिया। 21st सेंचुरी डिमांड्स 21st सेंचुरी स्किल्स। बच्चे बहुत ही क्रिएटिव है, वो नेगेटिविटी को भी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। एक बच्चा स्कूल में पढ़ रहा था और जब घर पे आया तो टीचर ने 0 दिया उसको, तो मम्मी ने पूछा बेटा ये 0 क्यों है? तो बच्चे ने कहा मम्मी स्टार खत्म हो गए तो टीचर ने मून दिया मुझको। See, though this is the generation we are dealing with, that generation that thinks very positively, very optimistic generation. So 21st century demands 21st century skills. They were all together different skill set. हम सारे जो है वो नोकिया का ब्लैक एंड वाइट मॉडल है, और हमारे बच्चे जो है वो सैमसंग का S7 Edge है, करेक्ट? सो ऑल द स्टूडेंट्स विथ लेटेस्ट सॉफ्टवेयर, लेटेस्ट डिवाइस, लेटेस्ट टेक्निकलिटीज़, क्योंकि भगवान को इस विश्व को आगे लेके जाना है। सो डेफिनेटली जब वो लॉन्च करेंगे अपने नए बच्चे को तो डेफिनेटली वो एडवांस्ड होगा, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ आएगा, करेक्ट? तो वो सारी स्किल्स बच्चों को सिखाना इट्स अ चैलेंजिंग टास्क। ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट, पहले ऐसा था कि हम 20 साल पीछे थे डेवलप कंट्री से, 15 साल पीछे थे, लेकिन अब वहाँ पे कुछ इन्वेंट होता है, दूसरे दिन इंडिया में वो आ जाता है, नेट पे इमीडिएटली आ जाता है। सो एक ग्लोबलाइजेशन इफेक्ट है, ये दिन ब दिन हम छोटे होते जाते हैं, ग्लोबल छोटा होता जाता है और आगे बढ़ते। फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, लोग भविष्य के बारे में सोचने लगे, भविष्य की चिंता करने लगे। पहले वी आर नॉट जस्ट, हम इतना सेविंग नहीं करते थे, अब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करने लगे, हम सेविंग करने लगे, हर चीज़ में हम फ्यूचर के बारे में सोचने लगे, कल के बारे में सोचने लगे। वेरी गुड, ये लाइट बंद रखना। ट्रांजिशन मोड, वी आर इनटू ट्रांजिशन मोड। ब्लैक बोर्ड, हम लोग जब बच्चे थे कितने पेरेंट्स ने स्लेट का इस्तेमाल किया था? स्लेट, ऑलमोस्ट ऑल, करेक्ट? जो स्कूल में गए थे उन्होंने स्लेट का इस्तेमाल किया था। नाउ स्लेट कन्वर्टेड इनटू टैबलेट, तो स्लेट टू टैबलेट, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया। लेकिन इसमें भी काफ़ी सारे ऐसे पड़ाव आए जिसमें लगा 5-7 सालों में कि टेक्नोलॉजी विल डोमिनेट द एजुकेशन, बट धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी सबलाइम होती गई, टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे सब्स्टिट्यूट बनने लगी, वो लीडिंग रोल प्ले नहीं कर पाई। सो एजुकेशन इज़ इन ट्रांजिशन मोड। माइंडसेट लोगों के चेंज होने लगे। पहले हम जब पढ़ते थे परसेंटेज इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन अब जब पेरेंट्स आते हैं, जब इंक्वायरीज आती है, नए एडमिशन आते हैं, पेरेंट्स कहते हैं यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट होता है कि नहीं, 360 डिग्री डेवलपमेंट होता है कि नहीं, होल ब्रेन अप्रोच है कि नहीं। सो कंप्लीट डेवलपमेंट की बात लोग करने लगे बिकॉज दे रिक्वायर स्किल्ड पीपल। एंड फाइनली करियर ओरिएंटेड स्किल्स। रिसेंटली यस्टरडे ऑक्सफोर्ड करके जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उन्होंने एक रिसेंटली पेपर पब्लिश किया
और वो पेपर ये था, इन नेक्स्ट 25 ईयर्स 47% जॉब्स जो इंडिया में है या वर्ल्ड में है वो डिसअपीयर हो जाएंगे। उसका पूरा तरीका बदल जाएगा उस जॉब को ऑपरेट करने का। इट मीन्स वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आज जिसको हम कहते हैं ब्राइट जॉब है, बहुत ही अच्छा करियर है, वो शायद 25 ईयर्स के बाद उसका वैल्यू ज़ीरो हो सकता है। ऑक्सफोर्ड ने रिसर्च करके बताया इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो ये जो सारी चीज़ें हैं उसमें लगा कि अगर हम 10 साल के बाद अगर व्हाट नेक्स्ट कहते हैं तो वो नेक्स्ट क्या हो। तो 3 महीने का लगातार थिंकिंग, 6 महीने का डिस्कशन और लास्ट 30 डेज से in and out every day, our teachers, our principals, our trustees, Swamiji, we all are thinking constantly about the new shift, and the new shift is future ready school. So we have compressed, we have compiled various qualities 8C में लेके आए। 8C आप सबने देखे होंगे जब एंटर हुए तब। How many have seen the boards? जब आप एंटर हुए तो बोर्ड कितनों ने देखे? ओके, इसलिए कि अभी नहीं देखे तो जाते वक्त हम देख लेंगे। या ओके, तो सबसे पहला शिफ्ट स्वामी जी ने बोला, सबसे पहली बात हमारी स्कूल जिस आधार पे खड़ी है, जो हमारा आधार स्तंभ है, हमारा जो सबसे बड़ा फाउंडेशन है, दैट सी रिफ्लेक्ट्स द कैरेक्टर। द सेकंड, क्रिएटिव थिंकिंग। द वर्ड बिलोंग्स टू क्रिएटिव थिंकर्स। बच्चा मैथ्स कर रहा था, मैथ्स का एक चैप्टर चल रहा था, मुझे पता है 4th क्लास में टीचर ने कहा, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली, बच्चे कैसे सोचते हैं आज के बच्चे। मैथ्स का पीरियड चल रहा था, टीचर ने बोला एक किसान को एक खेत में बीज लगाने के लिए 4 दिन लगते हैं, तो 4 किसान को कितने लगेंगे। तो बच्चे ने कहा जिस खेत में ऑलरेडी बीज डाल चुके हैं वहाँ पे और क्यों बीज डालना है आपको। सो द स्टूडेंट्स आर वेरी इनोवेटिव, वेरी क्रिएटिव, सो वी हैव टू डील वेरी क्रिएटिवली विद देम। सो दूसरा सी हमने रखा क्रिएटिव थिंकिंग। तीसरा रखा क्रिटिकल थिंकिंग। थिंकिंग इज नॉर्मल बट क्रिटिकल थिंकिंग इज समथिंग विच मेक्स यू स्पेशल। कोई भी चीज़ में जो हम जिसे एक्सपर्ट कहते हैं, वो एक्सपर्ट क्या होता है, दे कैन थिंक क्रिटिकली, दे कैन थिंक इन डीप। वो सरफेस पे नहीं सोचते, वो थोड़ा गहरे जाते हैं और वो गहराई में जाके कुछ अलग से मोती निकाल के आते हैं। सो दैट क्रिटिकल थिंकिंग इज वेरी मच रिक्वायर। आफ्टर दैट कोलैबोरेटिव थिंकिंग, हम साथ मिलके सोच सके, साथ मिलके काम कर सकते। वर्ड्स बिलोंग टू द ग्रुप्स। आपने देखा होगा ये कंपनी इसके साथ मिल गई, ये लोग इसके साथ मिल गए। कोलैबोरेशन इज द न्यू वर्ड। करियर बिल्डर, हमारे बच्चे जो है स्वामी जी ने कहा वो करियर सीकर ना हो, वो करियर बिल्डर हो, अपना करियर खुद बिल्ड करे। वो ये ना सोचे कि जब प्लेसमेंट आएगा तब मुझे जॉब मिलेगा। आप सबने एक व्हाट्सएप पे जोक सुना होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जोक है ये। एक इंसान की गाड़ी जो है वो कीचड़ में अटक जाती है, उसे कहते हैं भाई गाड़ी को हटाओ, तो बोलता है आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हमने पूछा किसका इंतज़ार करते हो, उन्होंने कहा वो 4 निरमा वाली जो लड़कियाँ हैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। तो हम सबको लगता है कि हमारी गाड़ी जो है कोई और आके बाहर निकालेगा, बट इट विल नॉट हैपन। So we should not wait for the placement agency, we should not for the career, we should not be a career seeker, we must be a career builder, and that is the new word we have introduced. और बचपन से हम कैसे करियर बिल्ड करें बच्चे का, उस पर पूरा फोकस अभी हम शिफ्ट कर रहे हैं। उससे आगे जाके फ्यूचर बिलोंग्स टू कम्युनिकेटर्स। कम्युनिकेशन स्किल इज द 21st सेंचुरी स्किल। क्रिएटिविटी, कोलैबोरेटिवनेस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये 4 स्किल जो है 21st सेंचुरी की मेजर स्किल है। इससे आगे बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस। हमारे बच्चे जो है कहीं ना कहीं अगर पीछे आते हैं तो वो होता है लेक ऑफ कॉन्फिडेंस। और जो आगे बढ़ते हैं उसमें शायद नॉलेज कम होता है, बट दे आर कॉन्फिडेंट, दे मूव विद द न्यू एंथुजियाज्म एंड द न्यू एनकरेजमेंट। एंड फाइनली अल्टीमेटली स्वामी जी ने कहा ये सब हमें इसलिए बिल्ड करना है कि बच्चा सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करे। हम अक्सर सुनते हैं, एक और अच्छी बात बताऊं, ये मेरा फेवरेट इंसिडेंट है, मैं हमेशा बताता रहता हूँ पेरेंट्स को और टीचर्स को। इंसिडेंट ये है, एक बार कड़ी धूप में गांधीनगर में 2 मजदूर काम करते थे। एक मजदूर गड्ढा खोदता था और दूसरा मजदूर थोड़ी देर बाद वो गड्ढा भर देता था मिट्टी से। दोनों मजदूर ऐसे करते रहे, 10, 15, 20 गड्ढे हो गए। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, उसके पास गए, इतनी कड़ी धूप में आप गड्ढा अगर भरना ही है तो खोदते क्यों हो। उन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा सरकार ने इस काम के लिए 3 बंदों को काम पे रखा है। एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है पौधा लगाना और तीसरे का काम है मिट्टी डालना। लेकिन आज पौधा लगाने वाला एब्सेंट है। लेकिन हमें कोई ये कहना नहीं चाहिए कि हमने हमारा काम नहीं किया। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं जिस चीज़ के लिए, जिस पौधे के लिए, जिसको विकसित करने के लिए हम जो काम करना चाहते थे वो रह जाता है और सारी फॉर्मेलिटीज़ होती रहती है।
So ultimately our students should contribute something to the society. तो नेक्स्ट ईयर जब आपका कैलेंडर आपको मिलेगा, पूरे साल का जो कैलेंडर आपको मिलेगा, उस कैलेंडर में हमने पूरे हमारे प्रिंसिपल सुपरवाइजर्स, पहले तो मैं एक ज़ोरदार बात आपको कहना चाहूँगा, 2 साल में मैंने जो डेडिकेशन देखा है, अपर्णा मैडम प्लीज़ आप खड़े हो जाइए अपनी जगह पे, हमारे सारे सुपरवाइजर्स, आई नीड ऑल द सुपरवाइजर्स, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, प्लीज़ ऑल द सुपरवाइजर्स, रूपल मैडम, ज्योति मैडम, रौनक मैडम, सपना मैडम, 2 सालों से मैं जो देख रहा हूँ ये लोग जो काम करते हैं, इट्स समथिंग अमेजिंग। बहुत सारे स्कूल में जाते हैं, वी हैव विजिटेड मोर देन 140 स्कूल्स, 9 बड़ी बड़ी स्कूल के साथ वी आर एसोसिएटेड, वी आर प्रोवाइडिंग अवर कंसल्टेशंस, बट जो डेडिकेशन, जो काम ये लोग करते हैं, आई थिंक दे ऑल रिक्वायर ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर द अनटायरिंग अनस्टॉपेबल एफर्ट्स। या थैंक यू सो मच अपना मैडम फॉर मेकिंग दिस स्कूल ऑसम। So these are all the details we have given. When you are coming, when you are going, it will be there. So please have a look. ये आपको जो ब्रोशर मिलेगा उसमें भी होगा। ये एक सिर्फ बात नहीं है, स्वामी जी ने हमें बहुत अच्छी बात कही और वो ये कही, बहुत सारी चीज़ें मत करो स्कूल में। सी द विजन ऑफ स्वामी जी, व्हेन वी वर देयर लास्ट में 2.5 घंटे का समरी जब स्वामी जी ने दिया तो 1 मिनट में दिया, और वो उन्होंने एक बात ये कही कि बहुत चीज़ें मत करो स्कूल में, 8 चीज़ें ऐसी करो कि वो चीज़ों से बच्चा बहुत कुछ कर सके। तो वो 8 चीज़ हमने पकड़ी और वो 8 चीज़ को हमने फोकस किया, एंड 8 इज़ दैट, वो सारा 360 डेवलपमेंट, एकेडमिक, सोशल, ह्यूमन एक्सीलेंस, सोशल एक्सीलेंस, एकेडमिक एक्सीलेंस, स्पिरिचुअल एक्सीलेंस, वी हैव blend in this wonderful thing. So 8C is the new ideology for future ready school. First time ever in India we are launching this concept. So I think big thanks to Swami ji and great thanks to Paresh bhai and Sailesh bhai, our trustees. Yeah, so my time is over. I know you all are waiting for your kids to perform. तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो ताली इसलिए बजाओ क्योंकि मैंने जल्दी ख़त्म किया। Thank you so much. Always believed in providing education and valuing relations. Today, our theme is Sparkling Relations. So, let us all sit back and enjoy this program by all our participants. Please encourage them with a huge round of applause.
Wow, that was wonderful. Today, our theme is relations, with which, if we cannot change the world, at least we can change the way we look at it so that this world becomes a better place. Now, I would like to invite girls for a welcome song. महाराजा धीराज पधारो, दयालु मूर्ति पधारो, सुख आपवा पधारो, संतो भक्तों ने लाड लड़ावा पधारो, सेवकों ना सासा गोटीला स्वीकार माने पधारो। जीवन प्राण बापा श्रीनु दिव्य स्वागतम, जीवन प्राण बापा श्रीनु दिव्य स्वागतम, स्वागतम दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम। वहला सद्गुरु श्रीयोनु दिव्य स्वागतम, वाला सद्गुरु श्रीयोनु दिव्य स्वागतम, वाला गुरु बाप जी आपे अभयदान, वाला गुरु बाप जी आपे अभयदान। स्वागतम स्वागतम दिव्य स्वागतम, दिव्य स्वागतम। Wow, what an audience we have tonight. So now, not taking much of your time, let me invite upon stage my talented friends to portray the tale of relations. Please welcome them with a huge round of applause and enjoy this lovely evening.
हो गया, अभी तक नहीं आया। दोस्तों अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तो बोर हो गई थी। तुम तो जानते ही हो मैं हूँ सुपर फास्ट एक्सप्रेस और वो तो बैलगाड़ी धीरे धीरे आएगी। कौन किसका मजाक उड़ाता है? काशी कुछ नहीं कह रही थी। वो सब छोड़ो, पता है पार्क में एक बाबा जी बैठते हैं, वो सबको कहानियाँ सुनाते हैं। कहानी सुनाने वाले बाबा जी, अरे वाह, हमें भी सुनाइए। हाँ चलो मेरे साथ। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, एक किस्सा सुनो। कई साल पहले की ये बात है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? भयानक अंधेरी सी रात में लिए अपनी बंदूक मैं हाथ में, घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। घने जंगलों से गुजरता हुआ कहीं जा रहा था। जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं, जा रहा था। उफ, आगे भी तो बोलो ना। बताता हूं। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। घड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई 10 सवा 10 का बस वक्त था। लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से। लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर। कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे। अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पात पात, मैं पसीना, वो दांत दांत, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में। बचाओ, बचाओ। अरे भागो, अरे भागो, अरे भागो। फिर क्या हुआ? खुदा की कसम मजा आ गया, मुझे मार कर बेशरम खा गया। खा गया? लेकिन आप तो जिंदा है। अरे ये जीना भी कोई जीना है लल्लू? हाँ? ला 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 La 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 la. La 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 la.
La 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 la. La 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 la. एकदम सांताक्लॉज लगेंगे और उनकी तरह चॉकलेट भी देंगे। हाँ, पाजी ने सुन लिया। चॉकलेट भी देंगे। हम तो कहानी सुनने आए हैं। इधर आ जाओ बच्चों, इधर आ जाओ। बोलो, कौन सी कहानी सुनोगे? एक काम, कोई मजेदार कॉमेडी कहानी सुना दीजिए। नहीं, परियों वाली। नहीं, जंगल। नहीं, मुझे तो पंछियों की कहानी। नहीं, नहीं, अच्छा बच्चों, सीरियस डिस्कशन। बाबा जी, आपको जो ठीक लगे वो सुना दीजिए। ठीक है बच्चों, मेरी ये पोटली देख रहे हो? जी बाबा जी। इसमें बहुत सारी कहानियाँ छुपी हुई है। पोटली में कहानियाँ? कैसे? चलो अभी दिखाते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, राजा रानी, पंछी, बंदर, हाथी, जादूगर। इसमें हाथ डालो और जो भी चीज बाहर आएगी उसकी कहानी सुनाएंगे। तो बोलो, कौन कहानी निकालेगा? एक मिनट बच्चों, एक मिनट। एक काम करते हैं, आप सब मेरा हाथ पकड़ो और मैं अपना हाथ पोटली में डाल के एक चीज निकालता हूँ। आओ बच्चों। बाबा जी, आपका बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ बाबा जी, ये कौन है? ये तुम हो माही, तुम भी काशी, तुम भी काव्या और तुम भी विहान। बाबा जी, आप मजाक कर रहे हैं। ये तो कोई बड़ा इंसान है और हम तो छोटे बच्चे हैं। तो फिर आपको इंसान की कहानी सुनाते हैं। ऐसी भी कहानी होती है? बिल्कुल, एकदम नई कहानी, स्पेशल आपके लिए बनाई है। इंसान की है भैया ये कहानी, तरोताजा और स्पेशल कहानी। कैसे इंसान बना, कैसे इंसान बना, उसकी है ये मस्त कहानी। मेरी, आपकी, हम सब की है ये मस्त कहानी। बहुत समय पहले की एक बात है। बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, लॉर्ड क्रिएटेड एवरीथिंग। धरती, आसमान, पानी, हवा और फिर जीने के लिए जीवन बनाया। जीवन मतलब? हाँ बेटा, जीवन मतलब सब कुछ, पेड़ पौधे, पंछी, जानवर और इंसान भी। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। इंसान भी। तो देखना चाहोगे कैसे बना इंसान? जी बाबा जी। तो आओ दिखाता हूँ।
पंछियों को देख कर जागे है ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। ओ ये बताओ जरा, हम पंखों बिना जाएंगे कैसे दूर वहाँ। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो जाएगा, हम इतने नहीं नादान। आईना आईना दिखना दिखना चुभना चुभना दिखना दिखना। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान आसमान आसमान। इन पंछियों को देख कर जागे हैं ये अरमान, धरती पे हम चलते हैं पर छू लेंगे आसमान। छू लेंगे आसमान। बाबा जी, ये तो बहुत प्यारा था। भगवान जी तो बहुत बड़े आर्टिस्ट होंगे ना, इतना सब कुछ बना दिया। बिल्कुल। भगवान जी ने इतना कुछ बनाया, हमें भी तो उनको कुछ इनाम देना चाहिए ना। हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटा। हम बनाने वाले की आराधना कर सकते हैं। तो आओ बच्चों, हम जीवन मंत्र का जाप करते हैं। जीवन मंत्र। સ્વામિનારાયણ ભગવાન મારા ઈષ્ટદેવ છે, આસ્કસન મારું ગોળ છે, મહારાજની બુદ્ધિ જ મારો દેવ છે, છત્રદેવ મુર્દામાં છું, મહારાજ માટે જ મારો જન્મ છે, એમના તેને સદાય જીવું છે, ભગવાન અને સંતની સેવા એ જ મારું સુખ છે, એમની આજ્ઞા મૂર્તિમાં સદાય રહીશ, સત્સંગ મારું સુખ દુઃખમાં સદાય ભાગ રહે. જય સ્વામિનારાયણ. जय स्वामीनारायण। रब से दुआ
बन जाए गुलशन फिर से, कांटों भरी दुनिया। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, इस तेरे जहां में नहीं कोई हमारा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे राजा। हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या पापा जी अब बूढ़े हो गए ना, तुम्हारे जितने सुपर फास्ट एक्सप्रेस थोड़ी है, धीरे धीरे बताएंगे। इंसान जब धरती पर जन्म लेता है ना, तब ही गॉट ए फैमिली, परिवार है ना बाबा जी? हाँ, एक प्यारा परिवार जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भाई बहन, ऑल द ब्लड रिलेशन, जिनके साथ हम सब हंसते खेलते खिलखिलाते रहते। तो देखना चाहोगे एक प्यारा परिवार? जी पापा जी। तो देखो। बम चिक चिक बम 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 चिक चिक बम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले अब हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे। खुशी मिले या हम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलती रहे।
फूलों में खुशबू है, इस दिल में एक तू है। जन्मों के साथ ही हम साथ साथ है, जन्मों के साथ ही हम साथ साथ हैं। क्यों बच्चों, तुम्हारा भी बहुत प्यारा परिवार होगा ना? जी बाबा जी, हमारा भी बहुत प्यारा परिवार है। बिल्कुल, फिर तो ये हमारा बच्चा बड़ा होने लगा और स्कूल भी जाने लगा। आप सब लोग भी स्कूल जाते हो ना बच्चों? जी बाबा जी। अच्छा, कौन सा स्कूल? स्वामी नारायण दास इंटरनेशनल स्कूल। पता है बाबा जी, स्कूल में बड़ा मजा आता है। हमारे टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और खेलने में भी बड़ा मजा आता है। हमारे अच्छा दोस्त है। तो आओ तुम्हें दिखाता हूँ स्कूल के बारे में। तो देखो, చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికిచకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికిచకచో. दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे. आ जाओ पतंग लेके अपने ही रंग लेके, आसमां का शामे आना आज हमें है सजाना. क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू. ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू. तू धूप है झम से बिखर, तू है नदी बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, खुश जहां तेरी तो मंजिल है वही. क्यों इस कदर हैरान तू, मौसम का है मेहमान तू. खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले. सापा धारे गारे गामा पासा, बम 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 बोले, बम चिक बोले और मस्ती में डोले. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे. भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं,
ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। आप लोगों के भी बहुत सारे दोस्त होंगे ना बच्चों? जी बाबा जी। बिल्कुल, स्कूल के साथ आपको एक और रिश्ता मिलता है, दोस्ती का रिश्ता, फ्रेंडशिप का रिश्ता। बाबा जी आप देखना चाहेंगे हमारी दोस्ती? बिल्कुल। तो वो देखो। कभी लड़े लड़े से थे, कभी अड़े अड़े से थे, कभी भीड़े भीड़े से थे, बस यूं ही जुड़ गए। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 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 हैं। ये तो मुर्गियों के चूजे से संग एक दूजे के इधर उधर भीतर भीतर दौड़ते फिरे। ये तो होली के रंग हैं, अलग हैं पर संग हैं, चेहरे पे झलके तो सब लगे एक से। कहीं गालों पे लाली है, कहीं जेब खाली है, फर्क इनमें है बड़े, इन्हें फर्क ना पड़े। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे 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 हैं। जलेबियों के टुकड़े हैं, चाशनी से उभरे हैं, टेढ़े मेढ़े गर्मा गर्म पर मीठे भी हैं। ये तो हवा के झोंके हैं, कब मुट्ठी में बंद होते हैं, मर्जी जिधर मुकर उधर
सरसर बहे, कहीं मम्मी की थपकी है, कहीं कांटों पे झपकी है मंजिलें जुदा पर राह एक है। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।